Good morning, all of you. I am JVN Dr. Rakesh, Department of Organon of Medicine. We are going to start our topic, that is Chapter 2, Introduction to the Study of Homeopathy. In our last video lecture, we discussed the part first related to this chapter. Now, we will continue this chapter. We understand disease only to record the effects of disease. Record the symptoms. We can recognize disease only by symptoms at inner dynamic level and outer functional level. Here Hahnemann fault means in our last video lecture in part first we discussed about the basic information related to homeopathic science. We discussed about those facts in which we are dealing basically. Number one is unprejudiced observer. We talked about individualization, we talked about the functional and dynamic changes. Now, in this part, we try to understand what is actually disease, how we understand the disease. So Dr. Hahnemann says, Dr. Roberts says in this chapter that is we understand disease only to record the effects of disease. Means सिर्फ हम डिजीज को उसके सिम्टम्स के द्वारा ही पहचान सकते हैं जो पर्सन बीमार हुआ है और उसके अंदर क्या क्या अल्टरेशंस आए हैं उन अल्टरेशंस को हमें अनप्रेजुडिस्ड होके समझना है, ऑब्जर्व करना है। तो यही सिर्फ डिजीज है और कोई दूसरा इसका रूप नहीं। और जो सिम्टम्स हैं, जो अल्टर्ड सेंसेशंस और फंक्शंस हैं, उनको हमें रिकॉर्ड करना है, नोट करना है। वी कैन रिकॉग्नाइज डिजीज ओनली बाय सिम्टम्स। अगर हमने प्रॉपर वे में इन सिम्टम्स को नोट कर लिया है तो इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है डिजीज को पहचानने का। नाउ द disorder or disturbance which occurs at two levels. One is inner level, that is the dynamic level, and outer level is the functional level. Means कि अंदर की तरफ जो डिस्टरबेंस हुआ है वो बाहर सिम्टम्स के द्वारा एक्सप्रेस्ड हो रहा है और हमें उन्हीं को समझना है और उन्हीं को हमें रिकॉर्ड करना है, नोट करना है, जिससे कि हम डिजीज को प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड कर सकें। There must be a curative principle present in medicine. Reason divines as much, but its inner nature in no way to be perceived by its mode of expression, and its outward effects alone can be judged by experience. When all the symptoms are removed, means the disease is removed, and hence is restored. Homeopathy is primarily related to dynamic functional changes, no relation with the secondary, means the end result of the disease. मतलब जब हम ऑर्गेनन के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमने सिम्टम्स को रिमूव कर दिया है तो इसका मतलब डिजीज भी रिमूव हो चुकी है और उसकी हेल्थ रीस्टोर्ड हो गई है। मीन्स कि वो पहले वाली हेल्थी स्टेट के अंदर वो पेशेंट पहुंच गया है। Homeopathy is primarily related to dynamic functional changes, no relation with the secondary or the end result of the disease. जैसा कि हमने इस चैप्टर के पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने समझा कि डायनेमिक लेवल पे क्या चेंजेस हैं, क्या डिस्टरबेंस है, उसका इम्पैक्ट हमारे फिजियोलॉजिकल चेंज फंक्शंस में हमें देखने को मिलेगा और वहाँ पे डिसऑर्डर स्टार्ट होगा और ये डिसऑर्डर आगे चल के पैथोलॉजी के अंदर हमें देखने को मिलेगा।
It means the product of disease is not our object of treatment. होम्योपैथी मेडिसिन में कंट्रोल एंड रिवर्ट द पैथोलॉजी। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर हमारे पास में कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन का कोई पेशेंट आ रहा है, मीन्स कोई इसको अल्सर है या कोई ट्यूमर है, तो हम ठीक नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। वी कैन रिवर्ट पैथोलॉजी बैक if we go through proper our principles and apply these principles in selection of the medicine also, so that we can select appropriate minimum for the patient. Homeopathy may control and revert the pathology, that is, the tumors may be reverted and absorbed and finally disappeared, ulcers healed, along with restoring the patient to harmonious functioning of body under the dynamic province with similar remedy. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि अगर हमने परफेक्ट सिमिलिमम सेलेक्ट कर लिया है, एप्रोप्रिएट हमने मेडिसिन को सेलेक्ट कर ली है, तो भले ही डिजीज सेकेंडरी लेवल पे हो या प्राइमरी लेवल पे, हम उसको ठीक कर सकते हैं। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम फंक्शनल डिजीज को ही हम ठीक कर सकते हैं, बल्कि एडवांस पैथोलॉजीज को भी हम इसमें ठीक कर सकते हैं। In extreme emergency conditions, homeopathy system is not advisable. So there is a contraindication in this. If any disease condition which demands some prompt act, then we think a lot about homeopathy. मीन्स कि ऐसे इमरजेंसी केसेस, एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन जहाँ पे कि होम्योपैथी नॉट एडवाइजेबल, जैसा कि डॉक्टर हेनीमैन ने हमें ऑर्गेनन के अंदर पढ़ाया है कि कहाँ कहाँ पे एंटीपैथिक मेडिसिन यूजफुल है। तो वो यूजफुल यहाँ पे है कि एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन, वहाँ पे एंटीपैथिक मेडिसिन एडवाइजेबल है। और यहाँ पे जो क्योर क्योर को हम नहीं ले सकते, सिर्फ यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा हाउ टू पेलिएट दिस एक्यूट इमरजेंसी। Instead of, we can use principle of palliation, as Hahnemann says in footnote of aphorism 67, in which he says only in the most urgent cases where danger to life and imminent death allow no time for the action of a remedy. तो यहाँ पे एक दे दिया एक्सेप्शन की ऐसी कौन सी कंडीशंस है जहाँ पे हमें होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज में नहीं लेना है। वो कंडीशंस कौन सी है? ऐसे एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन, मोस्ट अर्जेंट केसेस जहाँ पे उसकी लाइफ को खतरा है, तो वहां पे हम होम्योपैथिक मेडिसिन यूज में नहीं ले सकते। समटाइम्स नॉट इवन क्वार्टर आवर्स एंड स्कार्सली मिनट्स, मीन्स कि ऐसा डिजीज कंडीशन कि इसको मरने की हालत हो रही है, उसकी पता नहीं कितनी देर के अंदर मर जाए, 1 घंटे में, आधे घंटे में, 15 मिनट में। तो इन सडन एक्सीडेंट्स अकरिंग टू प्रीवियसली हेल्दी इंडिविजुअल्स, for example in asphyxia and suspended animation, from lightning, from suffocation, freezing, drowning, etc. तो ये सब जो बताई है ये डिजीज कंडीशंस बताई है। मीन्स यहाँ पे किसी भी तरह का डायनेमिक डिस्टरबेंस नहीं हुआ, कोई ऐसा एक्साइटिंग कॉज आया, पेशेंट अचानक बीमार हो गया, बीमार इन द सेंस कि ऐसे कोई एक्सीडेंट हो गया इसके साथ में, और तो ये इसके लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस बन गई। Is it admissible and judicious at all events as a preliminary measure to stimulate the irritability and sensibility with a palliative, as for instance the gentle electrical shocks with blisters of strong coffee with a stimulating odor, gradual application of heat? When this stimulation is effected, the play of the vital organs again goes on its former healthy manner. For there is
here no disease to be removed, but merely an obstruction and suppression of healthy vital force. To this category belong various antidotes to sudden poisoning, alkalis from mineral acids, hypersulfuris for metallic poison, coffee and camphor for poisoning by opium. Development of homeopathy through the inductive method of reasoning. There is another shade about homeopathic science that is related to development of homeopathy. Homeopathy basically originate from the inductive logic. All the methods from the proving to the curative aspect are regulated under the inductive reasoning. Theory of potentization was the highest gift to science in general, to medicine, to particular. Homeopathic system is based on solid principles and these are applicable in every case of disease. The principle has the यूनिफॉर्मिटी मीन्स ये प्रिंसिपल्स हमारे हर डिजीज कंडीशन के अंदर एप्लीकेबल है. देयर आर सम पॉइंट्स which should be always in mind of a homeopathic physician, that is how he follow in the case, that is examination of the patient, record of the proving, analysis of the symptoms and the evaluation of the symptoms. These are basically 4 points जिसके अंदर कि फिजिशियन को ये नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे पेशेंट को कैसे एग्जामिन करना है, मुझे कैसे केस हिस्ट्री लेनी है, मुझे कैसे रिकॉर्ड ऑफ प्रूविंग जो मेडिसिन प्रूविंग हो चुकी है उनके उसके पास के अंदर नॉलेज होनी चाहिए. एनालिसिस सिम्टम्स को वो एनालाइज कर सके एंड लास्टली हाउ टू इवेल्युएट, हाउ टू गिव वैल्यू ऑफ दीज सिम्टम्स कि कौन से सिम्टम्स मेरे लिए वैल्यूएबल हैं. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन एवरी केस. तो ये स्टेप्स हमें हर केस के अंदर फॉलो करना है. सेकंड पॉइंट के अंदर रिकॉर्ड ऑफ प्रूविंग के अंदर हम जो भी पेशेंट के सिम्टम्स हैं उनको हमें नोट डाउन करना है. The selection of the remedy depends upon the above criteria in an orderly manner based on inductive reasoning. In every case, we find out the characteristic in the patient and in the remedy. These are always under the generals of the patient. Individuality is decoded every time in the examination of a case. 3 points should be followed. Means कि हर पेशेंट के अंदर हमें इंडिविजुअलिटी को देखना है, क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक पिक्यूलियर अनकॉमन सिम्टम्स हैं जो सिर्फ हमें उस पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं. मीन्स ऐसे कोई सिम्टम जो उस डिजीज के कॉमन सिम्टम से मैच नहीं कर रहे हैं, हमें आश्चर्यचकित करने का मौका दे रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है. तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम्स को हमें देखना है, फाइंड आउट करना है, जिससे कि उस पर्सन की इंडिविजुअलिटी एक्सप्रेस हो. So individuality is decoded every time in the examination of a case. 3 points should be followed. Number 1 is examination of the patient, examination of the symptom record of the patient, examination of the materia medica. So in the first point, we have to proper examine our patient. Second is the examination of the symptoms record of the patient. मीन्स जो जो पेशेंट फील कर रहा है, जो जो सेंसेशंस पेशेंट के अंदर हैं, उन सब को हमें नोट डाउन करना है. और थर्ड पॉइंट के अंदर एग्जामिनेशन ऑफ द मेटेरिया. अब जो हमारे पास में रिकॉर्डेड सिम्टम्स है उनको हमें मेटेरिया मेडिका से वेरीफाई करना है, उन मेडिसिन के साथ में जो इस तरह की रिकॉर्डिंग हमें देखने को मिलेगी उस मेडिसिन के अंदर. तो लास्टली हमें कंसल्ट करनी है मेटेरिया मेडिका. After going through these steps and analyzed by the method of induction to the generals of the case,
To make a general, we have to analyze special particular symptom in relation to the whole, because some particular symptoms supersedes minor general symptom. इस पैराग्राफ के अंदर हम बात करते हैं इवेल्युएशन कि हाउ वी इवेल्युएट आवर सिम्टम्स, क्योंकि हर सिम्टम्स की एक समान वैल्यू नहीं होती है, हर सिम्टम की वैल्यू अलग अलग होती है। जनरली हम बात करते हैं कि मेंटल जनरल्स को हम देते हैं हायर वैल्यू, फिजिकल जनरल्स को हम थोड़ा सा लोअर वैल्यू और पर्टिकुलर सिम्टम को हम लेस वैल्यू देते हैं। तो हमें ये देखना है कि कई बार पर्टिकुलर सिम्टम भी हायर वैल्यू वाले होते हैं, मतलब कि वहाँ पे कुछ हमें इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक चीज़ें या फिर पिक्यूलियर सिम्टम हमें देखने को मिल जाता है, तब वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सपोज कि आर्सेनिक केस के अंदर पेशेंट इज वेरी चिली एंड एम्ब्यूलेटेड बाय वार्म, बाय कवरिंग, बाय हीट, बट इन द केस ऑफ हेडेक he avoids warmth, avoids heat, and desire to uncover his head. This is basically a particular symptom. But in this symptom, this particular symptom have greatest degree. So here in this case, we should give importance to this particular symptom because the value is higher. And as well as there are some physical general symptoms, these are not very much marked in the patient, eh? then we then we can't give proper value to these symptoms. So the important thing is here, we should know about those symptoms which have higher values than other symptoms. इट इज़ वेरी इसेंशियल पॉइंट, बिकॉज अगर यहाँ पे हमने इन सब चीज़ों को इवेल्युएट करने के अंदर अगर हमने प्रॉपर इवेल्युएट नहीं किया, तब दिक्कत ये आएगी कि हम सिमिलिनम मेडिसिन को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, गलत मेडिसिन का सिलेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। ओके, तो द वैल्यू ऑफ जनरल्स डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड शुड बी एक्यूरेट एंड कंप्लीट। मींस कि जो भी जनरल सिम्टम्स हैं, भले ही मेंटल जनरल सिम्टम हो, भले ही फिजिकल जनरल सिम्टम हो, वो होने चाहिए एक्यूरेट एंड कंप्लीट। मींस अनप्रेजुडिस्ड होके हमें केस टेकिंग करनी है और हमें अपनी तरफ से कोई भी बात उसमें ऐड नहीं करनी है। जो पेशेंट फील कर रहा है, जो पेशेंट बता रहा है, एग्जैक्टली हमें वो रिकॉर्ड करना है और उस इंफॉर्मेशन को हमें कंप्लीट करना है। अगर इनकम्प्लीट है तो उसकी एक्यूरेसी कितनी है वो भी हमें पेशेंट से वेरीफाई करनी पड़ेगी। Kent says when there is no generals we can't expect cure। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात कही डॉक्टर केंट ने कि अगर आपके केस के अंदर कोई जनरल सिम्टम नहीं है, तब आप उम्मीद नहीं कर सकते क्योर की। तो यहाँ पे इस लाइन से डॉक्टर केंट कितना वैल्यू कर रहे हैं जनरल सिम्टम्स पे, कि हमारे लिए ये कितने इम्पोर्टेंट है। तो ये फिजिशियन को आना चाहिए कि प्रॉपर वे के अंदर केस टेकिंग कर पाए, उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे जो इंक्वायरी करनी है पेशेंट के साथ में वो किस किस लेवल पे करनी है। Bonningerson gives emphasis on modalities and ranks as general। डॉक्टर बॉनिंगसन ने मॉडलिटीज को बहुत जोर दिया है और उनको एज ए जनरल लेने के लिए कहा गया है। होम्योपैथी इज ए साइंटिफिक मेथड ऑफ ट्रीटिंग डिजीजेस व्हिच इज बेस्ड अपॉन नेचुरल लॉ एंड डेवलप्ड बाय इंडक्टिव लॉजिक। Hahnemann writes in aphorism third, physician must have the knowledge of। this aphorism is very important कि क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए फिजिशियन को। ये डॉक्टर हेनीमैन ने स्टार्टिंग के अंदर ही ऑर्गेनिक के अंदर इसको क्लियरली डिफाइन किया गया है। दैट इज द इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीजेस, दैट इज टू से इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज। मतलब कि फिजिशियन को
ये दिमाग में अंडरस्टैंड होना चाहिए कि मुझे डिजीज के अंदर क्योर किसको करना है. In every individual case of disease means the knowledge of disease indication. If he clearly perceives what is curative in medicine, that is to say, in each individual medicine, knowledge of medical power, yeah, knowledge of medicine action, and if he knows how to adapt according to clearly defined principles, what is curative in medicines to which he has discovered to be undoubtedly morbid in the patient so that the recovery must ensue. To adapt it as well in respect to the suitability of the medicine most appropriate according to its mode of action to the case before him, as also in respect to the exact mode of preparation and quantity of it required, means proper dose मतलब कि प्रॉपर कितनी कौन सी डोज की यहाँ पे ज़रूरत है पेशेंट को, लिक्विड फॉर्म में ज़रूरत है, ड्राई फॉर्म में ज़रूरत है, ग्लूकोज फॉर्म में ज़रूरत है, किस फॉर्म में ज़रूरत है, वो उसका नॉलेज होना चाहिए. एंड द प्रॉपर पीरियड फॉर रिपीटिंग द डोज, मुझे डोज कब रिपीट करनी है ये भी फिजिशियन को जानकारी होनी चाहिए. इफ फाइनली ही नोज द ऑब्स्टेकल्स टू रिकवरी in each case and is aware how to remove them so that the restoration may be permanent, then he understands how to treat judiciously and rationally and he is a true practitioner of the healing art. अगर किसी फिजिशियन को ये सातों पॉइंट की पूरी जानकारी है तब उसको हीलिंग आर्ट का जानकार या हम उसको कह सकते हैं ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ द हीलिंग आर्ट सही मायने के अंदर वही है जिसको इन सातों पॉइंट्स की जानकारी है. So we close our chapter here. Now the chapter is complete, and I hope you understand all these things.